Yes. Welcome to the class. How are you? Both of you? I'm fine. Fine. Okay. How about you, Rashi? Yes, good. So, both of you attending schools regularly? Yes? Good. Enjoying the lockdown period and the online classes too? Yes. Now, today's science class topic is microorganisms, friends and foes. Okay. अब ये चैप्टर का जो नाम है यही बड़ा इंटरेस्टिंग है. Microorganisms, friends and foes. You know, एक तो हो गया microorganisms, friends तो वैसे ही नाम सुन के दिल खुश हो जाता है. Foes भी पंगे लेने में तो मजा ही आता है, right? तो ये जो पूरा चैप्टर का टॉपिक है, it is quite interesting. देखो बेटा, we belong to a world in which both living and non-living things occur. ठीक है, इसमें आपके लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. अगर आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हैं, यू फाइंड अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देख पाते हो. जैसे आप कई तरह के ह्यूमंस देख रहे हो, प्लांट्स देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा. लेकिन आउट ऑफ दीज थिंग्स, वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैटेगरी वो आपके साथ हाइड एंड सीक. Microorganisms. Yes, they play hide and seek with you. You're not able to see them. You're not able to touch them. You are not able to do any kind of sensation until and unless they produce an effect. हमें तभी पता लगता है yes, there were some organisms over here. For example, आपका ब्रेड है, आप ब्रेड लेके आए घर पे, you just ate the bread and last two bread you just forgot to keep in the refrigerator. As if in India we have got humid conditions, hot and humid conditions. So after 2 days, you got to remember, oh shit, I forgot to keep the bread. So when you just open the packet, you found some kind of powdery substance over there. So what was that powdery substance? I didn't put anything. मैंने तो उस bread के packet में कुछ भी नहीं put किया था. So what is this? So when you touched that thing, you felt some kind of sticky सा वो feel हुआ आपको. That was bread mound. From where did it came? कहाँ से आया वो? ये तो है नहीं कि उसने नॉक नॉक किया, आपने उसके लिए दरवाजा खोला, वेलकम किया एंड यू सेड जाओ जी आपके लिए पार्टी तैयार है, गो एंड हैव योर फूड, एंजॉय योरसेल्फ. तो ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया. सो एक्चुअली दे वर देयर इन द एयर ओनली. हमें सिर्फ वो नजर नहीं आ रहे थे. वी वर नॉट एबल टू सी until and unless they made their presence felt. Okay, so the category of organisms which is, you know, which is very 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 small, which is you know, it is invisible to the naked eye. आप इसको unaided eye के साथ नहीं देख सकते हो. So there are various kind of organisms around us. The size varies from being very small to very large. But out of these two, we have a special category, which is your microorganisms. Yes, what are microorganisms? As I have already told you, they are extremely small organisms. Extremely. मतलब we just say कि इतने छोटे होते हैं. They are very 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 small. Okay, बेटा? Clear? Yes, Ma'am. बेटा. Okay. I think I should just, yes. Now it's fine? No, now it's fine. Yes? Chale. Now, you can just see those microorganisms only through a microscope. ओके okay? आप इसको सिर्फ Yes, माइक्रोस्कोप या ma'am. फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू आप देख सकते हो. अगर आप उसको पाउडरी सब्सटेंस को आप टच भी कर रहे हो ना, तो आपको कोई ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आएगा. ये नहीं कि उसमें से कोई पीप आउट करेगा, हेलो आई एम हियर, आई एम सिटिंग हियर, डोंट टच मी. दे वोंट रिएक्ट लाइक दिस बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी देम. सो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में, इनको हम प्यार से माइक्रोब्स भी बोलते हैं. We call them as microbes. It's their nickname. Okay. So अब ये जो microorganisms है ना, they really play an important role in our lives. They are important because they are actually useful as well as harmful. ये दोनों तरह से हैं. They are our friends also and they are our enemies also. So we can't live without them. हम microorganisms के बिना नहीं रह सकते हैं. Okay बेटा? Clear? Yes Rashi? Yes, ma'am. Okay. So आप देखो, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इनके बारे में कुछ खास बताती हैं. जैसे सबसे पहली चीज हम अभी डिस्कस करके हटे कि दे कैन बी सीन जस्ट थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. जब तक कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होगा हम इसे देख ही नहीं पाएंगे. ठीक है. यू कैंट सी देम विद एन अनएडेड आई. अब व्हाट डू मीन बाय अनएडेड आई? जब किसी आई को कोई हेल्प नहीं मिल रही. हेल्प का मतलब इन द फॉर्म ऑफ ईदर माइक्रोस्कोप और इट इज मैग्नीफाइंग ग्लास.
ओके बेटा, एड का मतलब ये है कि हम अपनी आईज को हेल्प कर रहे हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने में. इज दैट क्लियर मनन, राशि? अनएडेड का मतलब समझ में आ गया बेटा? यस. अब एक बात गौर से देखो, these microorganisms they can be unicellular as well as they can be multicellular. जैसे फंगस जो है इट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनीज में रहता है, सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं. ओके, so they are found everywhere on this earth. Just imagine a place and you will find a bacteria. Yes, they are so widely distributed over this earth. And as you already know this thing, you are aware of this fact that they are harmful as well as they are useful. Okay, now I am saying right from the starting of this chapter that we have a category of organisms. Category means you have much more inside. Okay, so there are some types of microorganisms जो हम उनको recognize करते हैं. So out of these, the very first is your bacteria. Okay, beta, bacteria. अब bacteria they are actually disease causing organisms. ये हमारे humans में काफी तरह के diseases cause करते हैं. For example, typhoid. Okay, जैसे टाइफाइड होता है. अच्छा, अब इसमें कोई अच्छी बात बता सकते हो बैक्टीरिया की? कोई अच्छी बात याद आ रही है? Something good about bacteria. Rashi? Yes, Manan? Anything good? Yes. Ma'am, it is used to make curd. Very good. Curd formation के लिए you have to take the help of bacteria. और कोई इसका use आपको ध्यान आ रहा हो? Yes. Yes, बेटा. राशि? Yes, ma'am. कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको इन फेवर ऑफ बैक्टीरिया याद आ रहा है? मैंने आपको बताया कि दे आर डिजीज कॉजिंग. ओके, मैंने इनके अगेंस्ट बताया पॉइंट. मनन ने हमें एक पॉइंट दे दिया कि मैम कर्ड फॉर्मेशन. सो व्हाट अबाउट एनी अदर पॉइंट व्हिच गोज इन फेवर विद बैक्टीरिया? Advantage of bacteria. यस, मतलब एडवांटेज, यूजेस, एनीथिंग. Just a second, I'm thinking. सॉरी. Mama, I'm thinking. Just a second. Okay, fine. Have you heard of something called leguminous plants? Yes, ma'am. Manan, what is special about leguminous plants? And they have rhizobium bacteria in their root nodules. What does that bacteria does? It fixes the now you can see Rashi, I have made it colorful. It is nitrogen fixing bacteria. Yes? Ma'am, Yes, beta. bacteria can produce oxygen which is used to create antibiotics. Okay, fine. Yes, good. Ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am. Yes. Ma'am, is bacteria used for bacteria can produce oxygen which is used to create antibiotics. Yes, they are used to create antibiotics. Very good. Now, what are next जो category है, next type है, that is fungi. Okay, वो है हमारा fungi. Yes. मैम आवाज कम आ रही है आपकी. मेरी आवाज कम आ रही है? एक मैं देख लेती हूँ बेटा. Here तो it is 100%. फंजाई को बेटा हम ब्रेड माउल्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो प्लस पॉइंट है दैट इज मेकिंग ऑफ वाइन. ओके बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी इज योर प्रोटोजोआ. ओके बेटा, प्रोटोजोआ दे कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया. ओके, मलेरिया जैसे डिजीजेस कॉज करते हैं ये. देन बेटा यू हैव एल्गे. एल्गे जो होते हैं, आपने कभी देखा होगा व्हेन यू मूव ऑन टू सम लॉन्ग ड्राइव, आप विलेजेस के थ्रू जाते हैं,
पॉन्ड्स आते हैं रास्ते में, पॉन्ड्स के ऊपर होते हैं। यस, वो ग्रीन कलर के पैचेस बने होते हैं, दे आर एल्गे ओनली, जैसे स्पायरोगायरा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्पायरोगायरा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज इम्पोर्टेंट, इसने इस टाइम पे बहुत धूम मचाई हुई है, एंड दिस वन इज योर वायरसेस। ओके, और ये हमारे अंदर काफी सारी यस काफी सारे डिजीजेस कॉज करता है, जैसे कोल्ड, फ्लू, HIV, तो ये सारे क्या हैं, आपके वायरस कॉज्ड डिजीजेस हैं। ओके, नाउ yes, Rashi, can you repeat the types of types of microorganisms? Yes, beta. Types of types of microorganisms. Manan. मैम बैक्टीरिया, Yes. फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस। Yes. Okay. Very good. चलिए, now we will move ahead. Now, बेटा देखो. अब first of all, I will just want to show you something. ये देखो बेटा, these are your microorganisms, the kind of microorganisms we have. See, we have bacterias. Okay, ये देखो bacterias आपको छोटे छोटे जैसे हम threads लगा लो वैसे नजर आ रहे हैं। These are your fungi. क्या आप ये fungi को देख पा रहे हो? ये देखो, it's like just like plant. Yes. Then you have protozoan. ये देखो, ये paramecium है. This is a footwear type. Then this is algae. जैसे मैंने आपको बताया था ना, ग्रीन कलर के ये पैचेस होते हैं, ये आपके सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है बेटा? Yes. Did you get? Yes, ma'am. Okay. Yes. Rashi, did you get beta? Yes. Now see, ma'am. these are some kind of viruses. Not every virus is similar, but ये मैंने आपके लिए कुछ pictures रखे हैं वायरस के लिए. This is basically bacteriophage, मतलब a bacteria carries this virus. This is adenovirus and this is HIV virus. Okay, so viruses थोड़े से अलग होते हैं बाकी माइक्रोऑर्गेनिज्म से। अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि उनमें क्या डिफरेंट होता है, ऐसा कि हम उसको बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखते हैं। बेटा, वायरसेस जो होते हैं ना, दे एक्चुअली लिंक अप द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। ओके, नॉन लिविंग वर्ल्ड जैसे आपका ट्रीज है, सॉरी ट्रीज नहीं, वुड है, देन आपका गेट है, then chairs हैं, tables हैं, they are non-living because they don't breathe, they don't grow, they don't reproduce, they don't show any kind of movement, they don't have brain, but living organisms, they do all work. Okay, so viruses are just a a step in between these two categories. What is so special about them? We will have a look about this. Now, viruses, first of all, देखो बेटा, viruses जो होते हैं, they are the smallest microorganisms. Okay बेटा, they are the smallest. देन आप देखो, हमने अभी भी बात की कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको सिर्फ एक मतलब स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। वायरसेस तो इतने छोटे होते हैं कि हमें इन्हें माइक्रोस्कोप में भी एक स्पेशल माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी खास बात क्या होती है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपके बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। दे आर वेरी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया इटसेल्फ। ओके बेटा, अब इनमें जो एक बात है जो बाकी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं है, वो क्या है कि दे कैन डेवलप। ठीक है, ये डेवलप करते हैं, दे मल्टीप्लाई ओनली। अब कंडीशन आप देख लो कि कंडीशन है ओनली, कंडीशन इज ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स। मतलब कि अगर ये किसी लिविंग सेल के इनसाइड हैं, अंदर हैं, तब ये डेवलप भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। बट इफ दे आर आउटसाइड द लिविंग वर्ल्ड, दे विल नॉट मल्टीप्लाई, दे विल नॉट divide. Okay, so they don't show any characteristic of living things, they don't show any kind of living organisms, कोई भी ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं दिखाते until and unless ये आपके किसी लिविंग वर्ल्ड में एंटर ना करें। ओके बेटा, क्लियर हुआ? सो they just behave like non living entities, ये non living entities की तरह बिहेव करते हैं। whenever they enter a host cell, जैसे ही ये एक होस्ट सेल में एंटर कर गए, why is this noise?
मनन, why is there so much of noise? हम अभी ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। Yes बेटा, मैम अभी ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं. We had just studied कि जो viruses हैं बेटा, they are capable of showing the living characteristics just in the presence of या inside the living organisms. और ये कभी भी आपके characteristics नहीं दिखाते, जैसे कि they won't reproduce, they won't multiply, they won't develop when they are outside the living world. मतलब they'll just completely look like a non-living entity. But when once they enter a host cell, जैसे ही ये एक होस्ट सेल में एंटर कर गए, तो ये क्या करते हैं, एकदम से दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. एंड अबव ऑल सबसे बड़ी बात है, ये होस्ट सेल की ही मशीनरी यूज करते हैं. ठीक है, तो ये मशीनरी भी होस्ट सेल की यूज कर रहे हैं और खुद की कोई एनर्जी नहीं लगती इनकी. एंड दे कॉज अ लॉट, अ वेरी बिग नंबर ऑफ डिजीजेस. ओके बेटा, यस, जैसे आपका कॉमन कोल्ड, मीजल्स, एड्स, ये सारी क्या है, वायरस कॉज डिजीजेस हैं. अब है बेटा, अब मैंने आपसे ये बात बोली थी कि microorganisms are, just think of a place and you will find microorganism over there. So they are present everywhere on the earth. Okay, they are present everywhere in soil, water, everywhere. ठीक है बेटा, yes, soil, water, then air, dust, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं. इवन इनका इतना ज्यादा है, इनकी जो एक रेंज है, जिस रेंज में ये हमें मिलते हैं, दैट इज टू वाइड. जैसे ग्लेशियर्स में टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से भी कम होता है, ये वहां पे भी मिल जाते हैं. जबकि आपको कोई और लिविंग सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको ये जरूर मिल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसी तरह से हॉट स्प्रिंग्स में जो टेम्परेचर रेंज है, that is around more than 600 degrees. more than more than 600 degrees का क्या मतलब है कि it is too hot. आप ये देखो, अगर हम होंगे हम तो बॉयल ही हो जाएंगे, because we are 70% of water and boiling point of water is 100 degrees. So क्या हो रहा है, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिल रहे हैं. इसी तरह से अगर हम लैंड की बात करते हैं, ठीक है, लैंड के केस में ये क्या है बेटा, ड्राई डेजर्ट से लेके आपके मार्शी एरियाज तक ये फैले हुए हैं. ठीक है बेटा, दे आर स्प्रेड लाइक दैट. फिर ये एज पैरासाइट्स भी रह लेते हैं, एज सैप्रोफाइट्स भी रह लेते हैं. पैरासाइट्स मतलब दे एंटर सम लिविंग सेल्स एंड दे स्टार्ट यूजिंग द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. सैप्रोफाइट्स मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे भी ये रिलाई कर जाते हैं. मतलब दे आर नॉट सो फुजी कि हाँ हमें ये वाली कंडीशन चाहिए, नहीं यही चाहिए. नो, whatever comes in their way they'll just accept. They like to live alone also, they like to live in colonies. Okay, yes, now they are considered to be as enemies of humans. हम इसको जनरली हमारे दुश्मन मान के चलते हैं. ओके बेटा, अब हम बात करेंगे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके यूजेस के बारे में. ओके बेटा, yes बेटा राशि, हाँ जी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट यूज इज मेकिंग ऑफ कर्ड. ठीक है बेटा, अब कर्ड जो बन रही है, दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ अ बैक्टीरिया जो हम सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि कर्ड जो है डेली में क्या है, सबके घरों में इट इज बीइंग फॉर्म. देखो बेटा, होता क्या है इसमें, जब कर्ड फॉर्मेशन हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग, जो आपका मिल्क है, मिल्क घर में मिल्क होता है, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कर्ड.
अब इसको कौन कन्वर्ट कर रहा है? इट इज कन्वर्टेड बाय द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया कौन है बेटा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम लैक्टोबैसिलस के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो व्हेन सम मिल्क को हम कर्ड में जब कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज बीइंग done by lactic acid bacteria, which is also known as lactobacillus. Okay, अब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हम क्या करते हैं, जब भी आपने कर्ड फॉर्मेशन करना है तो हम उसमें मिल्क में थोड़ा सा कर्ड मिलाते हैं। तो वो क्या होता है, जब हम इसको हमने लैक्टिक एसिड को मिल्क में ऐड किया थोड़ा सा, तो व्हाट इट डज, ये मिल्क को कोगुलेट कर देता है। ठीक है, कोगुलेट करता है, क्यों करता है? क्योंकि ये एकदम से एनॉर्मस रेट पे मल्टीप्लाई करता है, एनॉर्मस रेट, बहुत ज्यादा फास्ट। तो वो जो आप एक स्मॉल अमाउंट डाल रहे हो कर्ड का, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टर डोज। ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टर डोज। क्लियर हुआ बेटा? यस। ओके, सो इसमें क्या रहता है बेटा कि इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो इसमें वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। इट शुड नॉट बी टू हाई, इट शुड नॉट बी टू लो। तो जो रेंज है इसकी, दैट इज अराउंड 25 से लेके 30 डिग्रीज चाहिए होता है इसको। अगर ये तेज गर्म होगा तब बहुत ज्यादा रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो दूध है वो खराब हो जाएगा। अगर हम इससे कम रहते हैं तो जो बैक्टीरिया था उसको जो एक रेंज चाहिए थी उस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन को अचीव करने के लिए, वो नहीं मिलेगी, तो आपकी कर्ड फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगी, मिल्क जो है वो प्रॉपर्ली कोआगुलेट नहीं करेगा। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कर्ड का? सबसे बड़ा बेनिफिट है बेटा, जो इवन अगर आप किसी भी डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर्स विल आल्सो से कि curd is more beneficial as compared to milk, although I don't have that facts with me, but it is said that because जब ये लैक्टोबैसिलस होता है, what it does, ये जो मिल्क में विटामिन B12 का कंटेंट है उसको बढ़ा देता है। तो जिससे क्या हुआ कि आपकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू थी वो इंक्रीज कर गई। सो विटामिन B12 का कंटेंट इट इज इंक्रीजिंग, तो ये बैक्टीरिया इतनी बड़ी हेल्प कर रहा है कि उसको इंक्रीज कर रहा है, thereby it is helping the humans. Okay बेटा, now we will do making of bread. next use क्या आता है, ब्रेड बनता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनता है। ठीक है बेटा, अब इसको बनाने के लिए which microorganism is being taken help of, that is yeast. ओके बेटा, हम ईस्ट की हेल्प लेते हैं और हम क्या करते हैं, ईस्ट को फ्लोर में ऐड कर देते हैं। फ्लोर मतलब आटा, उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम ईस्ट को जब ऐड कर रहे हैं, हम उसका रोल क्या रख रहे हैं, रोल इज द रेजिंग एजेंट। रेजिंग एजेंट की तरह हम उसको यूज कर रहे हैं ईस्ट को, हमने ये फंक्शन उसको दे दिया। क्यों दिया ये फंक्शन? क्योंकि जो ईस्ट है वो बहुत फास्ट रेट पे मल्टीप्लाई करता है। ओके बेटा, सो जब ये एज रेजिंग एजेंट यूज हो रहा है तो ईस्ट क्या करता है, इट अंडरगोज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक तरह से एनाएरोबिक ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बेटा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, नेचुरली ये फ्लोर में से स्केप आउट करता है, उस डो में से स्केप आउट करता है। तो जब ये स्केप आउट करता है वो स्पेसेस छोड़ देता है एंड इट गिव्स अप द स्पंजीनेस। ये वो स्पंजीनेस जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के लीव आउट करने की वजह से होती है। एंड CO2 कहाँ से बन रहा है, इट इज बीइंग फॉर्म बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन व्हिच इज बीइंग कैरिड ऑन बाय द ईस्ट। दैट इज व्हाई हम ईस्ट को रेजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा, नाउ द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब इसमें क्या है बेटा, देखो जो ईस्ट है ना, इसमें क्या किया जाता है, ईस्ट को we specifically grow it on natural sugars. इसको जो भी natural sugars होते हैं ग्रेन्स में या क्रश्ड फ्रूट जूसेस के अंदर, वहां पे हम इसको जानबूझकर ग्रो करते हैं ईस्ट को। ठीक है बेटा, ओके, यस Ma'am, can you explain the alcoholic beverages again? श्योर बेटा, अल्कोहलिक बेवरेजेस में आई हैव टोल्ड यू दैट ईस्ट को ना हम बेटा वी ग्रो इट ऑन द नेचुरल शुगर्स। जो भी नेचुरल शुगर्स होते हैं, नेचुरल शुगर का मतलब क्या होता है, विच इज देयर द शुगर प्रेजेंट नेचुरली। वो किस किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, क्रश्ड फ्रूट जूसेस में।
तो जो ये नेचुरल शुगर्स के ऊपर ईस्ट जब ग्रो करता है तो नेचुरली उन शुगर्स को यूज करता है फॉर इट्स ओन मल्टीप्लीकेशन। तो एंड रिजल्ट आपका क्या बनता है, जब ईस्ट शुगर के ऊपर एक्ट कर रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग, देखो जब ईस्ट ने शुगर पे काम किया, ठीक है जी, तो शुगर को वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट करता है, इनटू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्यों हो रहा है, अंडर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, जो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन थी इसे हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अब फर्मेंटेशन क्या होती है बेटा, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है, इनटू, हमने किसमें बदल दिया बेटा, इनटू अल्कोहल्स ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट सेल्स। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। राशि, कैन यू रिपीट फर्मेंटेशन? यस बेटा, can you repeat? Manan, can you repeat beta fermentation? What is fermentation? How will you define fermentation? The process of, Ma'am, in which Sorry, the ma'am, I yeast was, respirates anaerobically on sugar, which converts alcohol plus CO2. yes, Rashi, Ma'am, now can I you tell? speak. Yes, yes, beta, you have to tell. What is fermentation, beta? Ma'am, fermentation is a metabolic process that produces chemical changes in organic substrates which form carbon dioxide and alcohol. Good. So it is fermentation. Now this fermentation, obviously it's a process. So it was being discovered by, इसको लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था सबसे पहले। ठीक है बेटा, अब हो क्या रहा है, और वो भी देखो कितना वे बैक, अराउंड 1857। So what is happening actually, glucose plus yeast will give me alcohol plus CO2. Now production of vinegar, ये next important use है इसका, which is production of vinegar. अब इसमें क्या हो रहा है, अब शुगर जो है ना बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्मेंट कर रहे हैं। फर्मेंट मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ओके बेटा। लेकिन अब की बार हमने ईस्ट नहीं यूज करना। ईस्ट जब यूज करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल। ठीक है बेटा, ये देखो जब हमने ईस्ट के साथ किया तो व्हाट वी आर गेटिंग अल्कोहल। अब हम इसको फर्मेंट कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं, या तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, वी आर गेटिंग विनेगर प्लस वाटर। यस, अब मुझे मनन आप बताओ बेटा, if yeast undergoes fermentation, what are the end products? Yes, Manan. Vinegar. No, I am talking about yeast. When a yeast undergoes anaerobic, या फिर कह सकते हो it undergoes fermentation. So what are the end Alcohol products? plus CO2. Yes, Rashi, when sugar is fermented with acetic acid bacteria, what will be the end products? Ma'am, alcohol. No, bache, it is acetic acid bacteria. I am not talking about yeast. Yes, Manan. Yes, ma'am. What will be the end products? मैम आपकी मैम क्वेश्चन नहीं सुना मैम, Okay. आवाज कट गई। Yes, मैं दोबारा बता रही हूँ. What will be the end products of fermentation of sugar with acetic acid bacteria? Vinegar plus H2O. Yes, vinegar plus H2O. Okay. H2O. Yes, good. Next beta. नेक्स्ट है बेटे प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं, जितनी भी साइंस में डिस्कवरीज हुई हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। क्योंकि इससे देखो बेटा, देयर हैज बीन लॉट ऑफ लाइफ सेविंग, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा, जो ये एंटीबायोटिक है ना, इट इज यू नो इट इज अ काइंड ऑफ मेडिसिन व्हिच इज यूज्ड टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ओके बेटा, अब सबसे पहले तो हम इस वर्ड पे चलते हैं। ये दो मेन वर्ड से बना हुआ है, एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ओके, अगेंस्ट। देन इट इज मेड अप ऑफ बायो, यस,
बायो मीन्स लाइफ, मतलब इट इज अगेंस्ट लाइफ, ठीक है। तो ये क्या करता है, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को या तो किल कर देता है या फिर उनकी ग्रोथ को ही रोक देता है, ठीक है जी। अब इसको हम ज्यादातर जो है ये बैक्टीरियाज और फंजाई से बने थे, जैसे कि आपके पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। आपको ध्यान होगा, आपको जैसे छोटे होते हैं, हमें फीवर होता है या हमारा गला खराब होता है, तो डॉक्टर्स हमारे को एक एंटीबायोटिक के साथ में एंटीबायोटिक जरूर देते हैं, और वो आपको ये बोलते हैं कि इसको 5 दिन खाना है, इसको 7 डेज खाना है। तो वो एक पर्टिकुलर कोर्स होता है उसका, जिसे आपको पूरा करना होता है। अब इसको ज्यादातर कई बार ऐसे करते हैं, हम अपने कैटल, गोट, पोल्ट्री एनिमल्स के फूड में भी मिक्स करके देते हैं ताकि उनको भी इन्फेक्शन ना हो, तो ये वहां पे भी काफी हेल्पफुल रहती है, ठीक है बेटा। अब देखो पेनिसिलिन जो थी ना, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आप ये वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की बात है बेटा। व्हाट ही वाज डूइंग जस्ट अ रिसर्च। तो इसने ना ही वाज लाइक स्टेफेलोकोकाई की ये ग्रोथ चेक कर रहा था, द एक्सपेरिमेंट वाज दैट। सो कोइंसिडेंटली इसके जो एक माउल्ड, एक जो सॉरी ट्रे थी, डिश ट्रे थी, पेट्री डिश बोलते हैं उसको, उसमें गलती से ग्रीन माउल्ड गिर गया। इट वाज अ काइंड ऑफ फंगस, पेनिसिलिन नोटाटम, ओके। वो जहां जहां पे वो गिरा उसके आसपास देयर वाज नो बैक्टीरिया, मतलब उस पेनिसिलिन नोटाटम ने वहां पे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दिया। तो जब when this Fleming he saw this thing, he said कि how can this happen? Wherever the green molds are there, there is no bacteria growing. How can this happen? So that means there is something released by green mold which is not, allowing the bacteria to grow. This led to the discovery of the first antibiotic. Okay? Yes. Okay. जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये देखो बेटा, ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसमें एक मैंने इमेज जो है वो बना के रखी है। ये देखिए, दिस वाज डन बाय फ्लेमिंग। ये देखिए बेटा, इसमें व्हाट ही वाज डूइंग, ये देखो बेटा, ये पेनिसिलिन कॉलोनी है, ये वाली, ये कैन यू सी दिस थिंग, ये व्हाइट वाला चीज आप देख सकते हैं। यस बेटा, Yes. यस। अब ये Yes, देखो, ma'am. यस। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये वाली जो चीज है ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया वाली, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस एरिया में आ जाओ, मैं एक मिनट इसका कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट इट इज विजिबल। अगर हम ये वाली चीज देखें, ये यहाँ पे ये देखो, ये टूट रहा है स्टेफाइलोकोकाई, यस, Yes, यहाँ ma'am. पे इट इज नॉर्मल। सो जहां जहां पे वो एरिया, जहां जहां पे ये पेनिसिलिन के कांटेक्ट में आया था, वहां वहां पे ये ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ही है बेटा, ये पेनिसिलिन कॉलोनी है, ये देखो इसके आसपास कोई भी स्टेफाइलोकोकाई प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे नीचे वाली साइड है। तो दिस शोज कि जो आपका पेनिसिलिन था वो ग्रो नहीं करने दे रहा था बैक्टीरिया को। यस बेटा, Yes, ma'am. क्लियर, Yes, ma'am. ओके, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है बेटा, इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है बेटा, अब वैक्सीन की प्रिपरेशन कैसे होती है, ठीक है। यस, नाउ इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स आल्सो द माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। देखो बेटा, व्हाट द प्रोसेस इज लाइक, होता क्या है, व्हेनेवर, अब देखो हम एक लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू सी द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, सो वी डोंट नो हाउ मेनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स दे एंटर आवर बॉडी। So whenever disease causing germs they enter our body, तो हमारी बॉडी how it reacts, अब नेचुरल सी बात है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी को तो अच्छे लगेंगे नहीं, ये तो है नहीं ना हाथ जोड़ के वो नमस्ते करेगी, वेलकम करेगी, नो, इट विल नॉट, इट रिएक्ट्स। हमारी बॉडी को इट डजंट लाइक एनी काइंड ऑफ फॉरेन मटेरियल, तो वो कैसे रिएक्ट करती है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन आवर, it's a kind of a preventive strategy of our body. Whenever our body comes in contact with any kind of disease causing germs, our body forms antibodies, and ye jo antibodies hain, they will fight with these disease microorganisms and will wipe them off, okay। But somehow unfortunately what happens, if in case हमारे बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स बने they lose against the germs, then the disease will appear, okay।
अब इसका दो रास्ते हैं बेटा, जब इन केस के हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जो हैं उनको हमें स्ट्रेंथन अप करना है, तो व्हाट वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, so that is done by vaccines. Okay, so vaccine is the in word which is there to prevent any kind of disease. जैसे आपने सुना होगा जब बच्चे छोटे होते हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीनेशन आपने ये वर्ड सुना होगा. So that vaccination is basically providing vaccines. Okay, अब हम इतनी देर से वैक्सीन वर्ड यूज कर रहे हैं, अब एक्चुअली होता क्या है वैक्सीन? वैक्सीन क्या है बेटा? इट इज ईदर किल्ड और वीकेंड स्ट्रेन्स ऑफ अ डिजीज. मतलब कोई भी एक डिजीज है उसको जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका जो बैक्टीरिया जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका वीकेंड स्ट्रेन ले लेते हैं या किल्ड स्ट्रेन ले लेते हैं. अब हमारी बॉडी के लिए तो देखो वो फॉरेन है, हम उसकी जो वो इतना उसकी स्ट्रेंथ होती है कि इट इज सफिशिएंट टू मेक आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट. ठीक है, वो इतना होता है सफिशिएंट. अब ये एंटीबॉडीज बन गई. अब व्हाट इज द द ट्रेडमार्क फीचर ऑफ आवर दिस एंटीबॉडी फॉर्मेशन, कि अगर एक बार एक डिजीज के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो हमारी जो बॉडी है उसको ये चीज याद रहती है कि दिस इज द बैक्टीरिया अगेंस्ट विच द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज फॉर्म. तो जब नेक्स्ट टाइम वो अटैक करती है तो ये पूरी फुल एंड पावर के साथ रेडी होता है एंड इट रियली फाइट्स बैक. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी सेल्स. जो ये एंटीबॉडीज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मतलब वैक्सीन क्या कर रहा है, वो मेमोरी सेल्स को भी स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो फटाक से उसको याद कर लेता है. नेक्स्ट टाइम जब वो वैक्सीन, जब वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो ऑलरेडी उसको याद है कि इस तरह का बैक्टीरिया या इस तरह का कोई प्रोटोजोआ एंटर कर रहा है, तो आई हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज और उसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होनी चाहिए. सो दिस इज हाउ आवर बॉडी मैकेनिज्म जो है वो एक्ट करता है और वैक्सीन उसको प्रमोट कर देता है. जैसे कि इसमें काफी सारे वैक्सीन हैं आजकल दिए जाते हैं छोटे बच्चों को, जैसे टैब जो है इट इज गिवन फॉर टाइफाइड, बीसीजी इट इज गिवन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो ड्रॉप्स तो आपने सुना ही होगा, दैट इज फॉर पोलियो. और आपको यस, पोलियो तो है इट इज लाइक वर्ल्ड वाइडली जो है वो इरेडिकेट हो चुकी है. डीपीटी आपकी 3 कंडीशंस को एक साथ कवर अप करते हैं, ट्रिपल डोज, डिप्थीरिया, काली खांसी एंड टेटनस. ओके, यस बेटा, हाँ जी. So it is diphtheria, काली खांसी and tetanus. Okay. So first vaccine जो थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी. एडवर्ड जेनर ने, और ये बनाई थी उसने स्मॉल पॉक्स के लिए. ओके, स्मॉल पॉक्स. Yes, स्मॉल यस, स्मॉल पॉक्स के लिए. वेरी गुड. ठीक है जी. तो फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर. नो, एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक. इट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. एंड वैक्सीन किसने बनाया बेटा? Edward Jenner. हाँ जी, एडवर्ड जेनर. नाउ जस्ट लुक अप इनटू दिस इमेज, आई वांट टू शो यू. देखो बेटा, ये हमारी जो एक मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि एक जो यस, ये देखो बेटा, हमने एक ये बॉडी है, इसमें वी आर इंजेक्टिंग द वैक्सीन. ठीक है बेटा. अब वैक्सीन में जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये वीकेंड जर्म्स होते हैं. ठीक है, वेरी वीकेंड जर्म्स. अब आप ये देखो, जब हमने वैक्सीन को ब्लड में इंड्यूस किया, ठीक है, हमने पुट इन किया, जैसे ही वैक्सीन ब्लड में गई हमारी बॉडी में क्या बनने शुरू हो गए? एंटीबॉडीज बनने शुरू हो गए. यस, एंटीबॉडी फॉर्मेशन शुरू हो गई. अब जब रियल में जब डिजीज ऑर्गेनिज्म वो आएगा कभी, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है ना कभी कि वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो हमारी बॉडी को याद रहता है कि आई हैव टू फाइट दिस ऑर्गेनिज्म विद एन एंटीबायोटिक लाइक दिस. ओके, तो वो उसको याद रहता है बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी सेल्स. उसको ये चीज याद हो जाती है कि नो, आई हैव टू फाइट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ एंटीबॉडीज. तो उस टाइम पे वो टाइम बच जाता है. ठीक है, कि आप उसकी फॉर्मेशन को पूरा पढ़ो. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और ये आप काफी हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हो. ठीक है, बट एट योर लेवल टू लर्न कि हमारी बॉडी जो है वो याद रखती है कि हमें एक पर्टिकुलर डिजीज जो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है उससे हमने कैसे फाइट करना है. एंड वैक्सीन जो है इसी बात का बेनिफिट लेती है और हमें बेनिफिट पहुंचाती है. सो दिस इज इट फॉर योर टुडेज क्लास. आई विल कैच यू गाइस टुमारो. हैव अ गुड डे. टेक केयर. Bye, ma'am. Bye.